Recruitment and selection. Write down recruitment. It is the process of searching for. It is the process of searching for and oblique देखिए करना. Searching for and obtaining the applicants for job. Searching for oblique and obtaining the applicants for job. It is the process of attracting as many applicants as possible from the eligible job seekers from various sources. From the eligible job seekers from various sources. अब सुनिए, देखिए कहीं पे भी रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस माना जाता है, ओके, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सिलेक्शन इज अ recruitment is a positive process and selection is a negative process. Why? Because in recruitment you go on adding the applicants. अगर आपको एक सीनियर मैनेजर के पोस्ट को रिक्रूट करना है, आप इंटरनली भी देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जब इंटरनल एडवर्टाइजमेंट निकलती है, ऑर्गेनाइजेशन देती है, तभी आप इंटरनल एप्लीकेशंस को भी कंसिडर करेंगे. एक्सटर्नली भी आपने एप्लीकेशन दे दिया है कि हमें एग्जाम और इंटरव्यू और एंड थ्रू ऑल दोस प्रोसेस हम सीनियर मैनेजर रिक्रूट करेंगे. कोई रेफरल है उसके थ्रू भी करेंगे, कोई और मीडियम है उसके थ्रू भी करेंगे, कंसल्टेंसी है उसको भी हमने डाल के रखा है कि ये पर्टिकुलर स्किल सेट अगर हमें मिल जाए आपके कंसल्टेंसी से, then you please consult us. So we are open to recruiting people from various sources, right? And that is why this is considered to be as a positive process. On the contrary, selection is not a positive process, it is a negative process, because in each step we eliminate, right? In each step we eliminate. Selection mein we start eliminating them, so selection is a negative process क्योंकि उसमें हम eliminate भी करते हैं. Understood? Write down. Recruitment is a positive process. Recruitment is a positive process because the HR goes on adding the number of applicants and prepare the database for current and future opening of the organization. For current and future opening of the organization. MNCs regard recruitment as a key process. The success of any organization depends upon its HR, any human resource. Key process. Okay, full stop. The success of any organization depends upon its HR, and people working for it. After all,
An organization is made up of its people and intellectual capital. Its people and intellectual capital is made up of, organization is made up of its people and intellectual capital. Only when good people apply, only when good people apply, best people are selected. देखिए, only when good people apply, best people are selected. Done? Now, see, you understand that recruitment is of two different types. Okay? आपने ये सुना है कि जैसे आप जब ये देखते हैं कि आप कहीं ज्वाइन करते हैं, पीयूष, नो, राजा, उत्सव ना, छोटा है कुछ? बोलो, अच्छा लिख लेना बाद में, पहले तो सी, आपने ये देखा है ना कि आप एग्जीक्यूटिव पे ज्वाइन करते हैं एंड देन यू बिकम आफ्टर योर एग्जीक्यूटिव पीरियड यू आर प्रमोटेड टू असिस्टेंट मैनेजर, राइट? लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो एक असिस्टेंट मैनेजर बाहर से ले ले अगर उसको वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी है। तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, when you are working in an organization as an executive, if they take assistant manager as you, this will be called internal recruitment, and if they take it from outside, that will be called external recruitment. Means recruitment from within the organization is known as internal, and that from outside the organization is known as external. Internal recruitment किस किस तरीके से किया जा सकता है, बताओ? हाँ, वेरी गुड, प्रमोशन, हाँ, फिर से बोलो, ट्रेनिंग, ट्रांसफर इज द वर्ड, यस। अगर मान लो दिल्ली वाले ब्रांच में कोई है काम कर रहा है एंड आई नीड हिम एट पटना, आई ट्रांसफर हिम टू पटना। वेरी गुड, वेरी गुड, हैव यू स्टडीड इट? अच्छा, चलो, वेरी गुड। आप जनरली देखे होंगे कि बैंक वगैरह में जो लोग रिटायर करते हैं ना, जब रिटायर किए तो जनरली देयर आर स्केल 4 स्केल 3 ऑफिसर्स होते हैं, है ना? अब तो क्लर्क से पीओ भी बहुत जल्दी जल्दी प्रमोट हो जाता है क्योंकि वो क्लर्क से उतना काम नहीं करा सकता है जितना पीओ से। तो पहले क्लर्क से पीओ प्रमोट होने में बड़ा टाइम लगता था, अब तो वो जानबूझ करके जल्दी प्रमोट कर देता है इंटरनल एग्जाम से, ताकि क्योंकि एन ऑफिसर और क्लर्क को काम कराने में थोड़ा डिफरेंस होता है। आप ऑफिसर से ज्यादा काम, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, और बैंक का काम बहुत ही स्ट्रेसफुल काम है अभी के टाइम पे। ओके, so generally these bankers are scale 3 or scale 4 officers by the time they retire. So after retirement they are offered to take up some work. Okay, माने post retirement आपको काम ऑफर किया जाएगा, उसके लिए आपको पेमेंट की जाएगी, but yes, these works are for short term basis. आपको एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको रखा जाएगा, कितने दिन तक आपको आप ये सब काम करिए, एंड देन पोस्ट रिटायरमेंट यानी आफ्टर रिटायरमेंट जो लोग एम्प्लॉइज हैं उनको, तो उनको लेने में क्या फायदा होता है? उनको लेने में देखिए ये फायदा होता है, वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, तो सब जानते हैं ना, राइट? वो सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम होता है, क्या टारगेट है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, हाउ द वर्क शुड बी डन, हाउ पीपल शुड बी मैनेज, दे नो एवरीथिंग. So when you take, say, you're studying in this college for the last 2 years, almost 2 years, okay, and someone else, some new student joins here, किसको कंफर्ट ज्यादा है? आप लोगों को, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं यहाँ पे। अब कोई काम करने बोला जाएगा तो आप लोग ज्यादा आसानी से काम करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को भी ये प्रेफर करेगी कि क्योंकि आप सिमेज के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको कोई बेनिफिट ऑफर की जाए बाहर वाले के बजाय, यू नो, क्योंकि एक काइंड ऑफ मोरल भी हाई होता है बाकी लोगों का भी। ओके,
लेट्स डिस्कस और फिर हम लोग प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे इसका क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट दो तरीके की होती है, एक इंटरनल एंड वन एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट का एग्जांपल है जितना अभिजीत ने बताया, ट्रांसफर, सेकंड प्रमोशन, बताता है रिटायरमेंट के बाद जो काम करोगे उसका पैसा रिटायरमेंट का पैसा। When you are retired, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए जरूरी होता है, a lot of administration work, a lot of paper work, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारा काम। तुम रिटायर हो गई, तुम्हारा टेन्योर खत्म हो गया 60 years एंड यू आर रिटायर्ड, तुमको सारा बेनिफिट मिल गया, जो जैसे जैसा होना है दैट इज डन। फिर भी वो उनके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको ऑफर किया जाएगा जॉब कि आप ये चीजें कीजिए। आप ये सुने होंगे कि पापा लोगों को रिटायरमेंट के बाद भी ऑफर हो रहा है कि वहीं पे काम टेकअप कर लीजिए। लाइक माय फादर वाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट पटना सेक्रेटेरिएट, ओके, सो आफ्टर ही रिटायर्ड ही वाज ऑफर्ड वर्क एट सेक्रेटेरिएट कि आप जिस प्रोफाइल पे हैं उस प्रोफाइल पे ऑब्वियसली उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता है क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद लोगों को ऑफर कर रहे हैं। Then a certain amount of money is given to you every month apart from all the retirement benefits, ठीक है। अब आप फ्रेश एम्प्लॉइज को लाएंगे तो काम सिखाने में ही बहुत टाइम चला जाएगा, अंडरस्टूड। अभी हम और समझाते हैं इसका इंटरनल और एक्सटर्नल का बेनिफिट्स और नुकसान। समझ में आया एक्स एम्प्लॉइज का मतलब आया। नेक्स्ट एक्सटर्नल, ये बताइए सोच सोच के। बाहर से कहाँ का से? वॉक इन इंटरव्यू, वेरी गुड, बाहर से ले रहे हैं। सब एक एक बताओ, रुको सोचो, 2 मिनट हम तुमको सोचने का टाइम देते हैं। सोचो कहाँ कहाँ से रिक्रूटमेंट होता है। दिस इज वेरी सिंपल। और इंटरनल आप नहीं भी जानते होंगे बट एक्सटर्नल यू नो दिस। सोच के एक एक पॉइंट बताओ, सोच के रखो। नो सोच के रखो, हम पूछेंगे जिससे तुमसे भी पीयूष, ठीक है, सोच के रखो। प्रोसेस बता देंगे तुम लोगों को सिलेक्शन का, थोड़ी आसानी होगी सिलेक्शन। डन, सोच लिया एक एक पॉइंट बोलो राजी। ठीक है, बैठो। एम्प्लॉयमेंट बॉडीज जैसे राजवी एग्जांपल दे सकती है? वेरी गुड। जैसे आईबीपीएस, आईबीपीएस क्या करता है? एग्जाम कंडक्ट करता है बैंक के बिहाफ पे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का करेगा, पीओ का करेगा, क्लर्क का करेगा, और भी रीजनल रूरल बैंक का करता है, और कुछ कुछ जो भी है दैट इज जस्ट अ बॉडी। कैन यू नेम सम बॉडीज अपार्ट फ्रॉम आईबीपीएस? UPSC, very good, BPSC, very good, commission, these examination commissions, UPSC, BPSC, SSC, ये सब क्या है? These are just the bodies, employment bodies, और major recruitment इनके तरफ से होता है, ठीक है। IBPS is the body, UPSC is the body जो कि conduct करती है, and UPSC is a constitutional body, ठीक है। तो सेंट्रली यूनियन है, तो यूनियन की बात है तो वो सेंट्रली ही होगी। लेकिन ये बताओ, नीति आयोग को नाम, प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया ना, वो सरकार का करने के दायरे में, दैट इज विद इन द स्कोप ऑफ लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे वो यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो हमारी बात, दोनों में डिफरेंस समझो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे फाइनेंस कमीशन, जैसे यूपीएससी, ये चीजें संविधान बनते वक्त ही लिखी गई थी, संविधान में संवैधानिक बॉडीज हैं ये सब, तो इसका नाम कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई गवर्नमेंट नहीं।
यूपीएससी का नाम चेंज नहीं किया जा सकता, फाइनेंस कमीशन का नाम चेंज नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से देयर आर मेनी अदर बॉडीज व्हिच आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको चेंज किया जा सकता है। So you understood this? Employment bodies, UPSC, BPSC, SSC, the other state commissions. Next. Yeah. Very good. Bato. Abhijit. Employment exchange. Very good. Piyush. Ma'am, job candidate. Job candidate. सबसे तो जॉब ही मिलता है, मतलब बी a little clear, क्या कहना चाह रहे हैं बताओ। मे भी हमको समझ नहीं आ रहा है, तुम हमारे दिमाग में कुछ है, बताओ, क्लियर करो। तुमको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? आया ना, कि रिक्रूटमेंट कैसे कैसे होता है, बताओ किस किस तरीके से तुमको जॉब मिलती है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, इंटरनल हम बता दिए, अब एक्सटर्नल तुम बताओ। You have idea or not? No. Rohit? Very good. बताओ। Job portal. Job portal, very good. Very nice. से बोले और किसी को आइडिया है तो हाँ। अभी ऑनलाइन जो होता है भाई रिक्रूटमेंट, वेब रिक्रूटमेंट, Ma'am, consultant. वेरी गुड। कंसल्टेंट हो, कंसल्टेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंसल्टेंसी ऐसे काम होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड कंसल्टेंट्स आर डिफरेंट थिंग्स। कंसल्ट इस बताएंगे डिफरेंस। कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये कई जगह ये लीगल ऑब्लिगेशन है इसका कि आपको मेंशन करना है दिस इज अ प्लेस। सी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखो, अब क्योंकि इंटरनेट बहुत ज्यादा हो गया है, सो वी डू नॉट नीड दीज ऑब्सोलीट बॉडीज। एक टाइम पे क्या होता था, जैसे कि 70-80 के दशक में, आप ज्यादातर बोल सकते हैं। अच्छा ये भूल गए आप लोग, एडवर्टाइजमेंट, राइट? कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जनरली कहाँ, देखो काफी आइडिया है तुम लोगों को। गुड, क्या बता रहे थे हम? हाँ, कंसर्न देखो, एम्प्लॉयमेंट बॉडीज जो तुम बोल रहे हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दिस वाज सपोज्ड टू बी अ प्लेस where the job givers would meet job seekers and compulsory declaration of number of vacancies in an organization was supposed to be made at employment exchange. पहले क्या होता था ना कि employment exchange का फॉर्म भर के आते थे लोग, जैसे आपको नौकरी चाहिए तो आप जाइए अपने शहर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और फिर जा करके पता करते थे लोग कि नौकरी के लिए, यहाँ चाहे दूसरे शहर में। बट अभी के टाइम पे यू नो थिंग्स आर सो कॉमन, सो सिंपल, आप जॉब पोर्टल्स में डालते हैं। देखो एक अलग से क्लास में थोड़ा सा तुम लोग को बताएंगे कि जैसे नौकरी वगैरह में सीवी डालते हो ना, क्या होता है सीवी का, कैसे इसकी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा ये बताएंगे तुम लोग को, जॉब पोर्टल्स का थोड़ा सा जानना चाहिए। ये हो गया। अब देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो, कंसल्टेंट्स, देखो कंसल्टिंग बॉडीज, अभिजीत you don't get confused between these two. Consulting bodies like A.F. Ferguson, this is a huge consulting body, ठीक है? And generally, I repeat the word generally these consultants are so enhanced, so developed that they generally give you the skills which are either for middle level management or for top level management. समझ में आया? Consultants are also known as head hunters, ठीक है? HEAD head and hunters, head hunters क्यों बोला जाता है? Because it is generally considered that people who are middle level management and top level management, these are rare to be found, these skills are rare to be found in the skill set, and plus these people are very important to the organization. That is why these consultants are also known as head hunters. बहुत फेमस कंसल्टेंट्स हैं जैसे ABC कंसल्टेंट, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है? A.F. Ferguson, these consultants are very huge
एंड जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो आप सोच सकते हैं, वो इनसे कांटेक्ट किए रहती हैं कि क्योंकि लोग जा करके उसमें देते हैं सीवी एंड कीप नोट ऑफ इट, तो वो ये डिटरमिन करते हैं कि अगर जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो अवेलेबल स्किल सेट से मैच होती है, देन दे हेल्प यू मीट ईच अदर एंड दे टेक अ गुड कमीशन फॉर दैट। अंडरस्टूड? एक और होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, देखो ये इधर ही लिख देते हैं साइड, ठीक है, यहाँ से देखना लाइन, भाई वॉकिंग इन लोगों को दिखेगा। हाँ देखो, वेरी गुड। वॉक इन इंटरव्यू, ऑफ कैंपस इंटरव्यू, ऑफ कैंपस, ऑफ कैंपस तो इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट नहीं आते हैं। ऑफ कैंपस देखो, ऑफ कैंपस का 2-3 मीनिंग है, जैसे कि ऑफ कैंपस ये सब है, ठीक है, लेकिन एक ऑफ कैंपस का मतलब ये भी होता है जैसे कि पटना में कोई ऑर्गेनाइजेशन आए और वो पूल करे लोगों को, वो बोले कि मुझे कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए, बट दिस कॉमर्स ग्रेजुएट आई विल नॉट गो टू सिमिज स्पेसिफिकली, आई विल कॉल द स्टूडेंट्स ऑफ सिमिज एट अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक कॉलेज में हो रहा है, मालूम सिमिज में ही वो आए और उन्होंने बोला कि मुझे बीकॉम के ग्रेजुएट्स चाहिए, एंड वहां सिमिज के लोग इनवाइटेड हैं, कॉमर्स कॉलेज के लोग इनवाइटेड हैं, बीकॉम के, ठीक है, तो यू डू नॉट राइट इट अंडर वन हेडिंग। ओके, समझ में आया कि नहीं? मतलब ऐसे भी रिक्रूटमेंट होता है कि अभी यहाँ पर एनआईटी है, बीआईटी है, तो लोगों को एक जगह पे कॉल करके कंपटीशन कराया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लिया जाता है, एंड देन दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम दैट, उसको ऑफ कैंपस बोला जाता है। अंडरस्टूड? कॉल इंटरव्यू, वॉकिंग, कॉल इंटरव्यू, टेलीकॉलिंग, टेलीकॉलिंग करो, या फिर देखो टेलीकॉलिंग होता है, बट दीज आर नाउ वेरी वेरी ऑब्सोलीट मेजर्स ऑफ, क्योंकि आप ये जनरली थिंग्स आर डन इन वेब। ई रिक्रूटमेंट, ठीक है, ई रिक्रूटमेंट क्या होता है? ऑनलाइन क्या होता है? कोई एग्जांपल है? देखो एक एग्जांपल टेलीकास्टिंग भी लिख लो। टेलीकास्टिंग का क्या मतलब होता है? कभी कभी देखो कि आज भी दूरदर्शन वगैरह ये सब प्रोग्राम चलाता है ना, कि युवा वर्ग को कुछ चाहिए, यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट, दीज मेथड्स यू नो दीज आर वेरी ऑब्सोलीट मेथड्स नाउ, क्योंकि इतना वेला कोई हो कि बैठ के टीवी देखे, प्लस इफ यू डोंट वॉच टीवी दैट जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी गॉन। एंड द सेकंड थिंग इज कि जनरली गांव वगैरह में जहाँ हम कहते हैं कि भाई बहुत अप्रोच नहीं है, वहां पर टीवी पे दिया जाता है, पर गांव में बिजली भी तो नहीं होती है, सो इफ यू डोंट वॉच टीवी, यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू वॉच टीवी, दिस अपॉर्चुनिटी विल बी गॉन। फिर भी जानना चाहिए कैसे भी जॉब ऑफर्स दिया जाता था। देन हाँ, व्हाट इज ई रिक्रूटमेंट? hiring potential candidate for a vacancy job through the electronic media. Through the electronic media, everything is done through e-recruitment, everything, right from, देखिए कई बार ऐसे केसेस हुआ है, आप जनरली देखे होंगे कि जब आप किसी अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वेयर you owe something to society, you have a sense of credibility, कि आपकी जवाबदेही बनती है कि आप कुछ भी अपने, ऐसे नॉर्मली वी आर मैंगो पीपल, है ना, हम लोग अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ भी डालें, दैट इज ओके, हमारे ट्वीट करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर कर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर पटना का एसडीएम कोई चीज वैसा डाल दे अपने फेसबुक पे, तो उसकी स्क्रूटनी होती है। देयर वाज अ केस हियर जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कोई बहुत सीनियर मेंबर थे, एंड ही रोट समथिंग अबाउट गवर्नमेंट, यू नो, कि कुछ की घपला हो रहा है एंड ऑल दैट, ये पुरानी बात है, and then he was suspended and an inquiry was set up for him. Understood? So e-recruitment का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मेल से या प्रोफाइल से आप रिक्रूट किया जा रहा है, आपका बैकग्राउंड चेक नॉर्मली क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है, आपसे पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ सामने से, आपका जो एप्लीकेशन है वो स्क्रीन होता है पहले, होता है ना। ई रिक्रूटमेंट में भी आपका बैकग्राउंड चेक होता है, लेकिन दे विल नॉट टेल यू अबाउट दिस। इफ दे वांट टू सिलेक्ट यू, दे विल
do all the background checking for you. आपका फेसबुक प्रोफाइल से, आपके ट्विटर से, आपका क्या व्यूज है। देखो बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स नाउअडेज। ये छोटे मोटे नौकरी की बात नहीं हो रही है। आप लोग भी 3-4 साल में तो कुछ अच्छा करेंगे, 3-4 साल इन द सेंस कि पहले एज अ फ्रेशर स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल डू समथिंग रियली गुड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ एक एक एम्प्लॉय की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अंडरस्टूड? सो ई रिक्रूटमेंट इज समथिंग, ई रिक्रूटमेंट का हम एक एग्जांपल देते हैं, नौकरी का छोड़ो, ये समझ में आएगा स्टूडेंट का। यहां से आपने बीकॉम किया, ओके, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू एमकॉम या फिर एमबीए किया, जो भी किया। नाउ यू वांट दैट यू वांट टू गो फॉर एन इंटीग्रेटेड कोर्स इन अमेरिका। टेक्सास यूनिवर्सिटी में तुमको पढ़ना है, किसी कोर्स में अप्लाई करना है, तो क्या पता करने वहां जाओगे? उनका अपना एक एग्जाम प्रोसेस होता है। अंडरस्टूड? यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल देयर फॉर्म। उनका फॉर्म जो एप्लीकेशन आएगा, जो उसका वो फॉर्म आप फिल करेंगे, ठीक है। आपसे सारा डिटेल्स मांगा जाएगा और काफी कुछ और भी मांगा जाता है साथ साथ में, जो आपको बना करके आपके प्रोफेसर सिर्फ भेजेंगे, ठीक है। कैरेक्टर वगैरह और ये सब चीजों के बारे में वो लोग मांगते हैं, तो इसीलिए टीचर से बना के रखना जरूरी होता है, ओके। तो वो जो एनवेलप होता है, जो सील्ड होता है, वो आप नहीं पढ़ सकते। यू हैव टू सेंड इट टू देम। द टीचर्स विल राइट इट एंड द टीचर्स विल क्लोज इट। वो खुला या टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, यानी द स्टूडेंट शुड नॉट नो व्हाट हैज बीन रिटन फॉर दैट, और फिर उसको पोस्ट किया जाता है। अंडरस्टूड? यूनिवर्सिटी में देन दे ओपन, क्योंकि देखो वहां पे यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर डिग्री लेना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इफ यू टॉक अबाउट ओनली, इफ यू टॉक अबाउट प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जैसे IIT है, ऑल द IITs, ऑल द IIMs, ISC बैंगलोर, इन चीजों की रेटिंग है। पर अदरवाइज छपड़ा आरा ये सब में हर साल एग्जामिनेशन के समय में आपको तमाशा दिखता है ना, कैसे होता है एग्जाम, होता है ना। तो ये तो फॉरेन में होता नहीं है, तो लोगों को समझ में आता है। बट इफ यू राइट तो ई रिक्रूटमेंट में, देन यू विल अप्लाई फॉर देयर कॉलेज कोर्स, और फिर वो एग्जाम में बैठने के लिए आपको परमिशन देते हैं। GRE वगैरह के एग्जाम का नाम सुना है? ग्रेजुएट रिकॉर्ड, देखना बोरिंग रोड से क्रॉस करते हो, ये सब एग्जाम का नाम देखना, ये सब का वो कोचिंग देता है। GRE, GMAT देखिए, हाँ, TOEFL और IELTS करके है, ये सब ध्यान देना, ओके। दीज आर दी एग्जाम्स, ये सब दिया जाता है एग्जाम्स। और एंड बिलीव मी कि ये एग्जाम बहुत सिंपल होता है। तो अगर आप लोगों को भी हायर स्टडीज करने का मन है तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिस्टेंट ड्रीम है या बहुत दूर की चीज है। हाँ, थोड़ा जाने के टाइम पे बैंक बैलेंस वगैरह दिखाना पड़ता है, क्योंकि दैट गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं इतने पैसे से, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्स होता है, ये एग्जाम्स में आपको अपियर करना होता है। देन टोफल वगैरह इंग्लिश का एग्जाम होता है, बेसिक इंग्लिश, कि वो बेसिक इंग्लिश कि आप भाई अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इतना है कि नहीं कि आपको समझ में आता है कि नहीं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका में पढ़ने वाले बड़े अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, ना होता है। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स दे रोट दिस एग्जाम एंड दे आर देयर, और बहुत ही ऑर्डिनरी सी इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग एक बहुत माइनर सी अंडरस्टैंडिंग से, इफ यू वांट कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए और दैट। इस एग्जाम की खास बात क्या होती है, जैसे हम लोग जब यहाँ पे एप्टीट्यूड लिखते हैं तो हम लोगों को पता होता है ना कि जैसे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, राइट? लिखा रहता है ना क्वेश्चन पेपर पे, दे विल नॉट डिस्क्लोज द मार्क्स। जैसे कि एक सर्कल का क्वेश्चन दिया तुमको, ये सर्कल का क्वेश्चन दिया, रेडियस दिया, तो ये बनाने के लिए अगर मिला तुमको, तो वो ये नहीं बताएंगे कि तुम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। हो सकता है तुमने अगला क्वेश्चन बनाया वो 2 ही नंबर का था, ये 6 नंबर का। समझ में आई बात? तो दे जस्ट कीप दिस हिडन, अदरवाइज एग्जाम इजी होता है। तो यहाँ एग्जाम पास किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तुमने जो तुम्हारा जो बैकग्राउंड वगैरह चेक हुआ, उसके बाद तुमने जो मेल किया प्रोफेसर का, एंड देन यू आर कॉल्ड। जब अगर इफ यू आर कॉल्ड देन यू विल गो फ्रॉम हियर,
अंडरस्टूड? सो एवरीथिंग इज ई रिक्रूटमेंट. तो माइक्रोसॉफ्ट के किसी कंपनी में बैंगलोर में काम कर रहे हो, सपोज करो कि तुम्हारा हेडक्वार्टर में हो गया, तो आप जब तक फाइनल नहीं होता है तब तक तो नहीं जाते हैं, एंड दैट इज डन थ्रू ई रिक्रूटमेंट. Understood? A lot of other things are done through e-recruitment. आजकल तो e-recruitment is a very common thing, right? Then job portals, right? Naukri.com and all that, right? E-recruitment और job portal में क्या difference होता है? E-recruitment में everything is done online. Understand? और job portal का क्या मतलब है? आपका screen हो गया और फिर वो आपको call कर सकता है कि आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, सर्टिफिकेट लेके आइए, इस ऑफिस में आइए. समझ में आई दोनों में डिफरेंस? देन यू हैव कंसल्टेंट्स, आई टोल्ड यू एडवर्टाइजमेंट जनरली पीएसयूज का या ऐसे आपने ऐसे भी फैकल्टी वगैरह के पोजीशन के लिए भी देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. वॉक इन इंटरव्यू वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया एंड देन यू गो इन एंड डू दिस. एक और होता है, देखिए कि आपको जानना चाहिए, ये फैक्ट्रीज वगैरह में होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. वेरी गुड, काफी पता था आपको. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसको कहते हैं हम रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट. लिख लो ये सब. This is done for only laborers, okay? Direct recruitment, this is done only for laborers, or generally this is done for meeting quick requirements. जो unskilled होते हैं, जिनके लिए बहुत ज्यादा आपको स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं है. Understood? That is direct recruitment. यानी फैक्ट्री पे ही, फैक्ट्री के गेट पे ही एडवर्टाइजमेंट चिपका दिया जाएगा कि जिनको आना है वो आइए, मिलिए, इंटरव्यू वगैरह जो थोड़ा बहुत है वो दीजिए, एंड देन यू गेट द जॉब. ये देखो सीजनल रिक्वायरमेंट में भी होता है ये चीज. रिक्रूटमेंट एंड फैक्ट्री के कैसे होता है, देखो कैसे होता है. अभी पीक सीजन आ रहा है ठंडी का, तो कश्मीर में शिमला मनाली लोग बर्फ देखने के लिए जाते हैं ना, तो होटल्स एकदम फ्लडेड. और यही गर्मी में भी पीक सीजन पे होता है, होटल्स फ्लडेड, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर. उनको ज्यादा ड्राइवर की जरूरत है ताकि होटल की फैसिलिटी दे सके, ज्यादा स्टाफ की जरूरत है ताकि वो क्लीनिंग करवा सके, रूम सर्विस को केटर कर सके, बाकी भी सर्विस देने के लिए उनको ज्यादा स्टाफ की जरूरत होती है. तो दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कि फॉर 4 months I'll hire you and then when the work is done we will fire you. ठीक है, क्योंकि पीक सीजन होता है ना. गया वगैरह में पिंडदान के समय में आप देखिए कि शहर की क्या हालत होती है ना. सो देयर इज अ पीक सीजन फॉर एवरीथिंग. सो उस समय में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कि भाई किसी को काम की जरूरत है, काम की तलाश है, तो आइए, द कंपनी इज सीकिंग फॉर वर्क. यू अंडरस्टूड? टेलीकास्टिंग मींस ऑन टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट. अभी तुम बताए दूरदर्शन वगैरह में ये चीज ऐड जैसे रोजगार या ऐसे करके छोटा छोटा प्रोग्राम आता है कि यहाँ ये रिक्वायर्ड है. लेकिन टेलीकास्टिंग का बहुत ज्यादा कॉन्स है, यानी कि डिसएडवांटेज है. टीवी पे बैठ करके तुम देखोगे तब ना, एंड बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं आती है. सो एट दोस प्लेसेस इट इज डिफिकल्ट टू हेल्प यू फाइंड अ जॉब थ्रू टेलीकास्टिंग. रिटन ऑल ऑफ दिस हो गया. कोई और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है क्या जो आप भूल रहे हो या आप जानते हो? अच्छा चलिए बड़ा से फॉर एग्जाम्पल अभी एडमिशन का टाइम था. ये टाइम एडमिशन का होता है, स्टूडेंट्स के एडमिशन का, सब पास आउट होते हैं. कोविड के कारण काफी कुछ डिस्टर्ब हुआ. वन ऑफ द एडमिन स्टाफ्स हियर, ओके, शी कॉन्टैक्टेड मी, शिल्पा मैम, अगर कोई काउंसलर के लिए, काउंसलर स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए कोई एलिजिबल अच्छे कैंडिडेट्स होंगे, कैन यू जस्ट रेफर इट टू अस. व्हाट इज दैट कॉल्ड? दिस काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड व्हाट? ऐसा होता है कि नहीं होता है?
हम लोग को इधर खेला जाता है कि रेफर What is that called? This is called employee referral. This is also a kind of recruitment. Employee referral. ठीक है, क्या हुआ? तो बोल रहा है स्टूडेंट रेफर No. This is बताते हैं क्यों नहीं होगा, देखो. Employee referral. Employee referral का मतलब होता है कि organizations, for example, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एक IT में एक प्रोविजन है माई बडी करके. जब वो ओपन करते हैं तो माई बडी में आपको अगर लगता है if you feel कि any of your relatives or any of your friends is suitable for a particular skill set in that organization, तो आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, आप भरिए, आप रेफर कीजिए. If that person gets selected, you will get a monetary reward for that, which is known as finder's piece. उसको हम कहते हैं finder's piece. ठीक है, समझ में आई बात? ये अदरवाइज भी होता है. जैसे when I was working in my organization, the manager called me and he said that if there is any suitable candidate who's suitable for the work of quality control, can you please send CV. तो हमने अपने जूनियर्स का CV दिया था. हमारे कॉलेज के जो जूनियर्स थे, फ्रेशर्स थे, उनका CV दिया था. दिस इज नोन एज एम्प्लॉय रेफरल. अब एम्प्लॉय रेफरल का आप बेनिफिट बता सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट जल्दी फास्ट एम्प्लॉयमेंट. गुड, थैंक्स. हम सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकता है कि उसी को मिल सके. बट दिस इज नॉट जॉब सिक्योरिटी. सी, कॉस्ट एफिशिएंट. एक तो ये इसने बताया कॉस्ट एफिशिएंट, ये तो होता है. टाइम एफिशिएंट, ये भी होता है कि you cannot go through the hassle of giving advertisement or going for searching a particular skill set every time you need somebody. Okay, this is why recruitment is important. You have a pool of CVs. Even if somebody has left, you will quickly look into other CV and help them join, right? For example, I'll tell you. Coming back to employee referral. Employee referral में क्या होता है? What happens? Say for example, Utsav is working in an organization for 5 years, and the manager and the senior manager of the company has asked Utsav that if there is any relative of yours or if there is any friend of yours who you think is eligible for this kind of work, please send his CV. क्या होगा उससे? अब ये 5 साल काम किया तो जरूर इसके दोस्त भी 3-4 साल काम कर ही लिए होंगे, तो कोई ना कोई तो होगा. जब उत्सव उसको बताएगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंसी है, तो तुम इंटरेस्टेड हो क्या, लाओ तुम्हारा CV फॉरवर्ड कर दे. उससे क्या होता है? You have transferred a part of organizational culture to that person. आप अगर काम कर रहे हैं तो आप उसको ये भी जरूर बताएंगे कि वहां कैसे काम होता है. बताएंगे ना कि देखो भाई, यहाँ पर ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ये वर्क कल्चर है, ये वर्क एथिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है, मैनेजमेंट ऐसा है, तो काम इस तरीके से होगा. अब बोलो CV फॉरवर्ड करेंगे नहीं. So the biggest benefit that we have of employee referral is the fact that you have already transferred a part of organization culture to that person. And the second thing is, ये ज्यादा आसान होता है एक पर्टिकुलर स्किल सेट ढूंढना. कुछ स्किल चाहिए, मान लो SAP कंसल्टेंट चाहिए, तो हम रिक्रूटमेंट देंगे तो हो सकता है इधर उधर से वेग भी आ जाए. लेकिन जब हम एम्प्लॉय रेफरल से बुला रहे हैं तो एम्प्लॉयज तो जान रहे हैं ना कि किसी वर्ड का मतलब क्या होता है, तो वो SAP कंसल्टेंट ही ढूंढ के देंगे. सो इट इज इजियर टू फाइंड अ स्किल सेट दिस वे, एम्प्लॉय रेफरल. Okay, we will do till here, and in the next class we will carry forward with more things of recruitment and selection and the detailed advertisement that I gave you. Okay. ये 11 मिनट का स्टार्ट किया.